Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 8 Classes and Objects in Java part 2. Student, in last session we learned classes in Java as well as we make one program using class object. Now in this session we are going to learn accessing instance variable and calling instance method. So what is actually instance variable or instance method? Instance variable and instance method are access via object. स्टूडेंट जब भी आपको कोई वेरिएबल एक्सेस करना होता है या मेथड एक्सेस करनी होती है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं. दे कैन बी रेफर बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एज फॉलो. और उसको किस तरीके से रेफर कर सकते हैं? तो डॉट ऑपरेटर से. तो फॉर एग्जांपल वी कैन रेफर अ लेंथ ऑफ रूम R1 यूजिंग R1 डॉट लेंथ. अभी मान लो कि लेंथ नाम का एक वेरिएबल है और रूम नाम का एक क्लास है. तो अगर लेंथ नाम के वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है स्टूडेंट तो रूम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा R1 और R1 डॉट लेंथ से आप लेंथ नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो. इन अ प्रोग्राम एंड इन्वोक मेथड R1 डॉट डिस्प्ले. अगर डिस्प्ले नाम की ये हम लोग ने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा इवन कि अगर आपको कोई मेथड एक्सेस करनी है तो ऑब्वियसली पहले ऑब्जेक्ट एक बनाना है आपको और ऑब्जेक्ट डॉट उस मेथड का नाम. तो R1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वो मेथड आप एक्सेस कर सकते हो. So that displays attribute values of room R1 as can be seen in code listing 8.1. Note that here dot is an operator and associative of dot operator is from left to right. Student ये याद रखना पॉइंट बिकॉज ये एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं इसमें कि डॉट ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी किस डायरेक्शन में है. सो डॉट ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. रिमेंबर दैट data should be protected from such a direct access from anywhere in the program, and whatever data you are accessing it's a direct access from anywhere in the program. Such a protection is possible with the use of access modifier that we will see later. When the instance variable are referred within the method of the same class, there is no need to use dot operator. Student, अगर इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो उस सेम क्लास के अंदर मेथड के लिए यूज होता है तो वहां पे हम लोग को डॉट ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन कोड लिस्टिंग 8.1 इन मेथड डिस्प्ले इंस्टेंस वेरिएबल आर एक्सेस विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर, and this is possible because method is invoked using reference variable R1 and thus refer instance variable are considered to be corresponding object stored at R1. As studied, when we only declare an object using class, object is not created. In this case, reference variable does not refer to any object and its initial value is null by default. Use of such a null reference or null pointer are illegal and may raise an exception. So referring instance variable or invoking method with null reference will give an error. Student, इससे relevant हम लोग एक प्रोग्राम भी देखेंगे. सबसे पहले अभी हमें ये समझना है कि इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड क्या होती है. तो इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई भी क्लास के अंदर उस वेरिएबल को या मेथड को एक्सेस करना होगा विदाउट चेंजिंग द क्लास देन वी कैन से इट्स अ इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड. अभी सेकंड पॉइंट जो है हम लोग का वो है क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड. इससे रिलेवेंट मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा. पहले एक बार थ्योरी समझ लेते हैं. As discussed earlier, when an object is created using new keyword, memory is allocated from heap area to store the value of its attribute. Student, we already discussed about this point. Whatever the memory is allocated from heap area, that is using that particular attribute. Thus, every object has its own instance variable. हर एक ऑब्जेक्ट का उसका खुद का एक वेरिएबल रहता है, इंस्टेंस वेरिएबल occupying different space in memory. Now, suppose we want to have a total number of windows of all room object created so far. To store the value, it requires only one variable per class. Student, suppose if there are total number of windows, there is one variable where we can access to the
in same class or other class. At that time we require only one variable per class. It is meaningless to keep this variable as an attribute of an each object. Actually it is not an attribute of an object, it is an attribute of class. Whenever we are accessing any variable from outside the class, that is, we are not accessing that particular variable only, we are accessing that attribute. Okay, thus when there is a need to have some variable that is shared by all object instance of the same class, the variable should be allocated the memory only once per class. It means that variable belongs to a class and not to an object. Such a variable can be declared within a class using static keyword before data type, and these static variable are called class variable. स्टूडेंट, क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई भी वेरिएबल को हम लोग दूसरे क्लास में यूज करना है और उस वेरिएबल के आगे उसको डिक्लेयर करते वक्त स्टैटिक कीवर्ड अगर यूज किया गया है तो हम लोग का वो क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड होता है। तो इसको आपको याद रखना है, मे बी इट विल बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम. So static variable can be accessed without creating an instance of class. Whenever you want to access a static variable, we no need to create an instance. So for example, if we try to display the value of Windows without creating any object of the classroom, so it will display 0. Just like class variable, class method can be defined using static keyword in front of the method definition. समझ में आया स्टूडेंट? अब इससे रेलेवेंट जो प्रैक्टिकल है ये समझ लें तो आपको ये समझने में और इजी लगेगा. सबसे पहले यहाँ पे देखना तो टोटल 2 क्लास बनाए गए हैं, एक क्लास रूम और दूसरा है रूम डेमो स्टैटिक. अब स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम लोग ये प्रोग्राम किस नाम से सेव करेंगे? तो जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगी उस नाम से ये प्रोग्राम हमें सेव करना है. तो प्रोग्राम सेव होगा रूम डेमो स्टैटिक डॉट जावा. देखो रूम डेमो स्टैटिक डॉट जावा नाम से ये प्रोग्राम सेव हुआ. तो यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टूडेंट स्टार्ट होगा और यहाँ पे हम लोग ने जो रूम नाम का क्लास है इसके कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं? तो 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक R1 और दूसरा R2. अब रूम R1 ऑब्जेक्ट में हम लोग ने सेट एट्रीब्यूट जो मेथड है ये कौन से क्लास में? तो इस क्लास के अंदर है. तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस मेथड. क्यों इंस्टेंस मेथड बोलेंगे? बिकॉज ये दूसरे क्लास के अंदर है और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को इधर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा ये क्लास के अंदर और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस मेथड. और R1.display राइट. तो सबसे पहले यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट होंगे और फिर डिस्प्ले होंगे. उसी तरीके से R2 एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट सेट होंगे और डिस्प्ले होंगे. इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग ने ऑलरेडी देखा था सुना, फिर से एक बार देख रहे हैं. तो देखो सबसे पहले सेट एट्रीब्यूट से सेट हो गई तभी वैल्यू उसकी बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी बिकॉज यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की. और डिस्प्ले मेथड से वो डिस्प्ले होंगे तभी भी वैल्यू R1 में भी 0 आएगी, R2 में भी 0 आएगी राइट. इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग ने ऑलरेडी किया था स्टूडेंट. आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट वेट. रूम डेमो नाम का एक प्रोग्राम हम लोग ने बनाया था राइट. तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग ने सेट एट्रीब्यूट से वैल्यू सबसे पहले डिस्प्ले किया था तो फिर 0 आए थे, बाद में ये सेट करने के बाद इसकी वैल्यू चेंज हुई थी राइट. तो उसी तरीके से स्टूडेंट इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले वैल्यू सेट कर दी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएंगे नहीं. तो पहले मेथड में डिस्प्ले होंगे वैल्यू 18, 12.5, 10 और 2. दूसरे में डिस्प्ले होंगे R2 ऑब्जेक्ट के साथ 14, 11, 12. उसके बाद system.out.println रूम टू नंबर ऑफ विंडोज मॉडिफाइड फ्रॉम 1 to 2 और वहाँ पे मेथड एक कॉल की है R2.set windows by 2. तो यहाँ पे set windows by 2. तो यहाँ पे देखना टोटल विंडोज इक्वल टू टोटल विंडोज यहाँ पे एक वेरिएबल है राइट. और टोटल विंडोज इक्वल टू टोटल विंडोज माइनस n विंडोज प्लस n. अभी n यहाँ से जा रहा है 2. टोटल विंडोज आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं है
बट टोटल विंडोज कैलकुलेट कैसे, एन विंडोज आपके पास है, राइट। टोटल विंडोज 0, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू उसकी टोटल विंडोज की नहीं दी है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को कंसीडर क्या करना है, तो सबसे पहले टोटल विंडोज इक्वल टू टोटल विंडोज माइनस एन विंडोज। एन विंडोज कितने रहेंगे आपके पास, तो स्टार्टिंग में इसमें है 1 प्लस एन कितना है आपका, एन विंडोज है आपका 1, 1 प्लस 1 2, राइट। तो यहाँ पे जो आपके जो सेट विंडो जाएंगे वो 2 बन जाएंगे, और सिस्टम आउट डॉट नंबर ऑफ टोटल विंडोज इक्वल टू रूम डॉट टीओटी विंडो। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना, तो टीओटी विंडोज ये आपका क्लास वेरिएबल रहेगा। क्यों क्लास वेरिएबल रहेगा, बिकॉज इसको हम लोग ने ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल किया, इसको डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल किया। अगर यहाँ पे मैं r1.tot विंडो या r2.tot विंडो लिखता तो ये हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल रहता, पर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्लास के नाम को लिख के फिर इस वेरिएबल को लिखा है, इसलिए हम लोग का ये क्लास वेरिएबल रहेगा, राइट। और इसके आगे स्टैटिक नाम भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी मेंशन किया, ये हमारा क्या है, तो क्लास वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है। अभी यही प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे एक बार, तो और इजीली हमें ये समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते प्रोग्राम, यहाँ से फाइल न्यू, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो रूम नाम का क्लास बनाना है, राइट। तो रूम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट, लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके बाद बाइट भेजेंगे, बाइट में रहेगा एन विंडोज, और उसका एक वेरिएबल स्टैटिक नाम का जो लिया था, जो मैंने बोला था कि क्लास वेरिएबल रहेगा, तो यहाँ पे भेजेंगे टीओटी विंडोज। और इसके बाद हम लोग 3 मेथड बनाएंगे, उसमें से जो पहली मेथड है उसमें सेट attr, सेट एट्रीब्यूट्स नाम की जो मेथड है, इसके अंदर सबसे पहले भेजेंगे फ्लोट लेंथ, इसके बाद फ्लोट विड्थ w, फिर उसके बाद फ्लोट h हाइट, और इसके बाद बाइट n। ओके, और यहाँ पे हम लोग असाइन करेंगे वैल्यू, सेम जैसे लास्ट के इस प्रोग्राम में की थी। और यहाँ पे एक मेथड को भी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्टली उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट, बाहर नहीं करना है हमें। तो सेट विंडोज और यहाँ पे एन पास कर देंगे, और यहाँ पे लेंथ इक्वल टू एल, विड्थ इक्वल टू w, height equal to h, and after that we close this method over here and we have to create one more method। so यहाँ पे और एक मेथड बनेंगे हम लोग set windows नाम की, तो void set windows bracket open by n bracket close, और यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं TOT विंडोज इक्वल टू TOT विंडोज माइनस n विंडोज प्लस n, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे n विंडोज इक्वल टू n। क्लियर हुआ स्टूडेंट। और इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं डबल एरिया इक्वल टू, ये फंक्शन क्यों है, बिकॉज इसके आगे वॉइड नहीं लिखा है, ये रिटर्न करेगा वैल्यू, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट डिस्प्ले नाम की मेथड हमें बनानी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नाम की मेथड बनाएंगे, system dot out dot println bracket open
सबसे पहले हम लोग को क्या डिस्प्ले करना है, तो लेंथ, राइट। यहाँ पे लेंथ का लिए वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इसको डबल कोट कंप्लीट करके फिर से इसको बाहर लिखेंगे, प्लस विड्थ भी यहीं पे चाहिए हम लोग को, तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट हम लोग नए से भी लिख सकते हैं, विड्थ डिस्प्ले होगी। आफ्टर दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन, हाइट चाहिए हमें, यहाँ पे हाइट नाम का वेरिएबल पहले डिक्लेयर करेंगे, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, उसके बाद नंबर ऑफ विंडो चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोट के अंदर नंबर ऑफ विंडोज, डबल कोट कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, प्लस वेरिएबल जो हम लोग ने डिक्लेयर किया था एंड विंडोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग की डिस्प्ले मेथड को क्लोज करते हैं, और हम लोग का जो क्लास रूम जो बना है इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हमें लिखना है रूम डेमो स्टैटिक, तो रूम डेमो स्टैटिक सेव करते हुए स्टूडेंट हम लोग को यही क्लास का नाम यूज करना रहेगा, और हियर वी हैव टू क्रिएट मेन मेथड, सो लेट्स क्रिएट इट फर्स्ट, पब्लिक static void main bracket open string argument, and after that we have to use square bracket inside that, and here we have to open the curly bracket, and inside that first of all we have to create two objects, so room r1 equal to new room, this is one object, and second object room r2 equal to new room, so this is second object student. After that we have to set the value, so r1 dot set attribute, and the first we have to assign length, that is 18, second width, that is 12.5, that is decimal value, that's why we use the f float value. After that height, that is 10, and number of windows I'm writing in byte, that is 2. Okay student, after that I call display method, so r1 dot display, so this value will be display over there, and after that I call again set attribute method, the value is 4, 11, 10, I'm sending the number of windows, that is byte, and number is 1. Okay, after that again I have to call the display method, so r2 dot display method, so when this display method will call the both whatever the value we assign inside attribute, it will be display student. Okay, after that system dot out dot print ln bracket open double quotes room 2 number of windows modified from 1 to 2 double quote complete r2 dot set windows by 2. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग ने एक मेथड को कॉल किया है सेट विंडोज के अंदर, जहां पे हम लोग सेट विंडोज में 2 वैल्यू पास कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद फिर से हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन स्लैश n total number of windows, total number of windows double quote complete plus room dot
TOT windows. Room ka are small because when we created the room class, that time we written small letters. So here also we have to write in small letter TOT windows. Bracket complete, semicolon, and here we have to close the main method first. After that we will close the room demo static method. So this bracket is extra. I am deleting this and save this program by name room demo static file save dot jar. क्लास का नाम लिखना नहीं है यहाँ पे, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल F7। तो सबसे पहले 13 नंबर लाइन लेंथ प्लस लेंथ, ओके, हियर system dot out dot println length length illegal. This, let me check the error. Slash n we have to write, n is missing from here, that's why that error came. Okay, here also control F7 static keyword, static int, control F7 public static void main string s should be capital. Okay, error free program. Now run it. So see here student, the length that is 18.0, width 12.5, height 10.0, and number of windows that is 2. How it comes student? After main, here first the set attribute method will be called. So whatever value we assign to set attribute, it will display by display method, and after that here in set attribute we assign the n windows equal to n. Student, अब यहाँ पे set attribute के अंदर set windows नाम की मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, राइट? तो set windows के अंदर जो 2 नंबर है हम लोग का नंबर ऑफ विंडोज, जो 2 वैल्यू पास हो रही है वो n यहाँ से यहाँ पे पास होगा 2, और TOT विंडोज, अब TOT विंडोज स्टार्टिंग में कितने रहेंगे? 0 रहेंगे, तो 0 माइनस n विंडोज, n विंडोज कितने हैं स्टार्टिंग में? तो n विंडोज की वैल्यू अभी तक असाइन नहीं हुई है तो वो भी 0 है, तो 0 माइनस 0 प्लस 2। ओके, तो आंसर आपका आएगा टोटल विंडोज का स्टूडेंट 2, और n विंडोज इक्वल टू n, तो n विंडोज भी आपके रहेंगे 2। आफ्टर दैट अगेन आई कॉल बाय द सेट एट्रीब्यूट मेथड, द वैल्यूज आर 4, 11, 10 एंड 1। तो वापस यहां से हम लोग सेट एट्रीब्यूट के मेथड के अंदर जाएंगे। तो स्टूडेंट सेट एट्रीब्यूट के अंदर सेट विंडोज नाम का मेथड कॉल होगा अभी। अब सेट विंडोज का मेथड जब कॉल होगा तो यहाँ पे हम लोग ने R1 ऑब्जेक्ट के अंदर n विंडोज की वैल्यू असाइन की थी 2, बट यहाँ पे फिर से हम लोग ने R2 ऑब्जेक्ट कॉल किया है, राइट? R2 ऑब्जेक्ट में n विंडोज की वैल्यू थी 1। अभी आपको यहाँ पे ये याद रखना है स्टूडेंट, मैं आपको नोटपैड के थ्रू ये समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, तो R1 ऑब्जेक्ट के लिए TOT विंडोज था 2 माइनस, स्टार्टिंग में वैल्यू पास हुई थी 2, सो 2 माइनस 0 प्लस n, प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग का स्टार्टिंग में 0 था, तो 0 माइनस 0, n की वैल्यू थी 2, राइट? तो हम लोग के टोटल विंडोज हो चुके थे 2। अब टोटल विंडोज जो है आपका वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी ये फिक्स रहेगी, आपका ये क्लास वेरिएबल है, राइट? तो यहाँ पे टोटल विंडोज आपको मिल चुके हैं 2, और R1 ऑब्जेक्ट में आपको n विंडोज जो मिल चुके हैं
वो है आपके 2। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग ने R2 ऑब्जेक्ट कॉल किया। R2 ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ने n विंडोज फिर से पास किए हैं 1। अब ये हुआ हम लोग का R1 ऑब्जेक्ट के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं R2 ऑब्जेक्ट की। तो R2 ऑब्जेक्ट में टोटल विंडोज जो वैल्यू पहले थी वो कैरी ऑन होगी बिकॉज इट्स अ स्टैटिक वेरिएबल। तो टोटल विंडोज जो है आपके वो है 2 माइनस अब n विंडोज जो है वो R2 वेरिएबल के लिए फिर से 0 हो जाएंगे बिकॉज जो 2 वैल्यू स्टोर हुई है n विंडोज वो R1 ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई है। R2 ऑब्जेक्ट में अभी तक n विंडोज की वैल्यू असाइन नहीं है, सो इट शुड बी 0 प्लस n पास हुआ है 1। सो आपका टोटल विंडोज कितना होगा स्टूडेंट अभी TOT विंडोज इक्वल टू 2 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 3 राइट। और n विंडोज इक्वल टू n, सो n विंडोज आपका रहेगा अभी n यानी 1 राइट। तो ये R2 ऑब्जेक्ट के लिए हो चुका है। अभी उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन room to number of windows modified from 1 to 2, that's after that they are calling the set windows method by R2 object right। तो R2 ऑब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने सेट विंडोज को कॉल किया है। तो यहाँ पे सेट विंडोज में बाइट एंड टोटल विंडोज इज इक्वल टू R2 ऑब्जेक्ट के लिए फिर से हम लोग बात करते हैं। टोटल विंडोज जो है आपका वो कितना है TOT विंडोज इक्वल टू टोटल विंडोज R2 में है आपका 3, तो 3 प्लस n विंडोज R2 में है 1, तो 1 3 माइनस 1 और प्लस n अभी पास हुआ है 2। तो अभी स्टूडेंट टोटल विंडोज कितने होंगे, so total windows is equal to 3 minus 1 plus 2, that total number of windows is 4 right। तो R2 ऑब्जेक्ट के अंदर भी टोटल विंडो जो स्टोर होंगे मतलब सेट विंडो से टोटल विंडो जो आंसर मिलेगा हमें वो है 4। so that's why here total number of windows is equal to room.tot window, that variable will be called and you will get the answer 4। okay student, still if you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number here। Today we will stop our session. In next session we will learn polymorphism program. Thank you students. Have a good day.